everyone. Welcome to chapter 5 Organizing of Business Studies class 12th. I have already discussed the meaning and process of organizing. Now today I'll take the organizational structure in the session. So let's start the session with organizational structure. So student, first of all we'll discuss what is an organizational structure. So organizational structure defines the hierarchy of people working in the organization, hierarchy of people as well as hierarchy of departments also, as well as how information flows within the organization. So basically organization structure specifies the relationship between people, work and the resources. Now it with the help of this organizational structure we can ensure smooth flow of communication between the people working in the organization. This structure defines how and when information is distributed, as well as who makes what decisions based on the information available. Here the job tasks are formally divided, grouped and coordinated. It provides better control of operations of a business enterprise. It also enables enterprise to work as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of individuals as well as departments, and automatically it helps the enterprises to increase profitability. For example, a company manufacturing textiles, a क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो कंपनी जो कपड़ा बनाती है, फॉर एग्जाम्पल दैट कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड बाय मिस्टर एक्स. नाउ मिस्टर एक्स अपॉइंटेड अ परचेज मैनेजर. He has to appoint a sales manager, a stock in charge, an accountant, sales executive also to handle the business. While appointing all these personnel, what he is doing, he is fixing the responsibilities of each of the employees. वो क्या कर रहा है, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ में फिक्स कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल द परचेज मैनेजर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर्स. जो परचेज मैनेजर है, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर्स ओनली. ही हैज़ नथिंग टू डू विद अदर वर्क. उसका एक ही काम है दैट ही हैज़ टू प्लेस the orders. The stock in charge, he was responsible for dispatch of गुड्स भेजना, बाहर भेजना उसका काम है. ही हैज़ टू मेंटेन स्टॉक रजिस्टर. ही हैज़ टू इन्फॉर्म द परचेज मैनेजर अबाउट द स्टॉक लेवल्स so that he can plan purchases, and to sales manager also so that he can take orders from customers accordingly. So every person, every employee working at some place, working at their own place, they have to maintain, they have to abide certain responsibilities. उनकी कुछ responsibilities हैं. The sales manager was responsible to develop market for company's products with the help of sales executives. So every manager is performing some responsibility. सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं. So with the help, while setting each employee's job responsibilities and accountability also, Mr. X was actually setting up the organizational structure for his business. Mr. X क्या कर रहे हैं, बेसिकली हर अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें हर एम्प्लॉय को उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो किसको अकाउंटेबल है, ये उसको उसकी जॉब के साथ ही वो बता रहे हैं. सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है which provides the framework within which managerial and operating tasks are performed. मैनेजर का भी काम हो रहा है और ऑपरेशन टास्क भी हो रहा है. It specifies the relationships between people, work and resources. लोग, काम और रिसोर्सेज, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ही पता चलता है. एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन. फिर उनके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होता है ये उसके बारे में बताता है. एमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसका सिर्फ एक ही मेन मोटिव है और वो क्या है, टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, टू अचीव द गोल्स फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज. So I hope this organizational structure is very much clear to you. Now let's move towards the types of organizational structure. There are two types of organizational structure.
First is functional structure. So let's discuss about the functional structure. Now as you see in the flow chart, functional structure, in a functional structure there is one finance manager, one is marketing manager, HR manager, administrative, and so many managers are there. And there is one board of directors. So basically this type of structure, organization structure, is basically where the business enterprise is managed in the form of departments. ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है यहाँ पर एक जैसा काम हो रहा है और एक जैसे जितने भी काम होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है एंड ईच डिपार्टमेंट हैज़ अ कोऑर्डिनेटिंग हेड. लाइक फाइनेंस का जो भी काम होगा उसका हेड होगा फाइनेंस हेड, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर. अब इनके अंडर और स्टाफ भी काम कर रहे होंगे बट दे आर द हेड्स. सो बेसिकली दिस इज सूटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर लार्ज स्केल ऑपरेशंस, जिनका बहुत काम होता है एंड विच हैव डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़. लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं. फंक्शनल स्ट्रक्चर ज़्यादातर इन ऑर्गेनाइजेशंस का होता है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द advantages of these type of organization. First is functional specialization. As the functional structure in an organization, it emphasizes on specific tasks being performed by specific employees within a department. Individuals performing same task, they are able to achieve the फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. एक जैसा काम बार बार करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगी. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. Assigning similar tasks to specific individuals enables business enterprise to use its manpower optimally and achieve efficiency. अब एक ही काम बार बार एक ही इंडिविजुअल जब कर रहा है तो ऑटोमेटिकली स्पेशलाइजेशन आ गई. अब स्पेशलाइजेशन आ गई इसका मतलब हर कोई जो रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करेगा और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी. देन इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. The similarity in task being performed within a department also ensures better control and coordination. क्योंकि एक जैसा काम सब कर रहे हैं, similar work has been performed by all the employees working in say finance department. So उससे क्या होगा, better control और coordination रहता है. It also reduces cost. Why cost is reduced? Because the division of work into smaller tasks. हम काम को छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं जिससे कि डुप्लीकेशन नहीं होती है. It prevents duplication of work. Confusions नहीं होती हैं और resources waste नहीं होते हैं. And it helps the company to achieve the economies of scale, that is reduced cost. Then automatically profit will increase. If the cost is reduced, efficiency is there, effective control is there, specialization is there, तो naturally है कंपनी के प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे. So it is very easy to train employees there also, as the employees are expected to perform similar tasks which may require specific and limited skills. So the training process is very easy for such organizations which are having functional structure. Now there are certain disadvantages also, like departmental interest may supersede organizational interest. हर एक डिपार्टमेंट अपना इंटरेस्ट के बारे में सोचने लगता है. लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट का अपना इंटरेस्ट, मार्केटिंग का अपना इंटरेस्ट. हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कॉम्पीट जब करते हैं तो कंपटीशन में कहीं ना कहीं वो अपने इंटरेस्ट को आगे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. सो इट मे बिकम अ डिसएडवांटेज फॉर द कंपनी. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम रहती है. देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन. इफ डिपार्टमेंट्स परस्यू देयर ऑब्जेक्टिव्स इट मे कॉज कन्फ्लिक्ट्स अमंग डिपार्टमेंट्स. मतलब डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है विच विल रिजल्ट इन प्रॉब्लम्स, जिससे कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वाइल एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन. मान लो सेल्स डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, स्टॉक मैनेजर जो है उसने इन्फॉर्मेशन ही पास नहीं की सेल परचेज डिपार्टमेंट को और परचेज डिपार्टमेंट ने आगे ऑर्डर नहीं प्लेस किया, तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट राइज हो सकती हैं, होती भी हैं. देन द वर्किंग कंडीशन इज़ वेरी रिजिड. एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट दे आर यूज टू परफॉर्म सिमिलर टास्क, सिमिलर स्किल्स. उनके पास एक जैसी सिर्फ सबके पास एक जैसी टेक्निक है, सबके पास एक जैसी नॉलेज है. सो इट डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव. दे डोंट हैव एनी आइडियाज, दे डोंट हैव एनी न्यू मेथड्स, दे कैन नॉट अप्लाई न्यू मेथड्स. So there is lack of flexibility. So the working is very rigid in
functional structure. And last is limited growth opportunities, क्योंकि एक जैसा टास्क मिलने से एम्प्लॉयज़ का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम हो जाता है. दे डो नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू गैदर एक्सपीरियंस इन अदर एरियाज. वो अब एक ही काम को बार बार कर रहे हैं और वही काम उनको बार बार करने को मिलता है, जिससे कि उनके ग्रोथ एरियाज जो है वो कम हो जाते हैं, लिमिटेड होते हैं. सो दिस इज़ अबाउट फंक्शनल स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट divisional structure. Now divisional structure is a type of structure where the enterprise works as units or as divisions. बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जिनके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं. लाइक इन दिस फ्लो चार्ट यू कैन सी द कंपनी इज़ हैविंग केमिकल्स, कंपनी इज़ प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक, ऑल्सो इलेक्ट्रिक डिवीजन भी है. फिर उसके बाद कंपनी अलग अलग कंट्रीज़ में भी काम कर रही है. सो दिस इज़ अ डिविजनल स्ट्रक्चर. सो द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट यूनिट्स और डिवीजन्स, और हर डिवीजन का अपना एक अलग से फंक्शनल स्ट्रक्चर. लाइक केमिकल डिवीजन की बात करें तो केमिकल डिवीजन का अपना एक स्ट्रक्चर अलग से होगा. लाइक उसमें HR मैनेजर भी होगा, मार्केटिंग मैनेजर भी होगा, परचेज मैनेजर होगा, फाइनेंस मैनेजर होगा. इसी तरह अगर हम प्लास्टिक डिवीजन की बात करें तो उनका भी अपना एक HR मैनेजर होगा, एक मार्केटिंग मैनेजर होगा, एक परचेज मैनेजर होगा, फाइनेंस मैनेजर होगा, वगैरह वगैरह. इसी तरह बाकी जो यूनिट्स हैं, दीज आर द यूनिट्स. केमिकल डिवीजन, सब डिवीजन के अपने अलग अलग सेटअप होंगे, सबका अपना अपना एक अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा. मतलब डिविजनल, एक डिवीजन के अंदर एक फंक्शनल स्ट्रक्चर. और इस तरह से ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जिनकी प्रोडक्ट लाइंस होती हैं, जिनका एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं. उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये डिवीजन स्ट्रक्चर होता है. So in this, within each division functional structure is there. So each unit has its own expertise. हर एक डिवीजन में अपने अपने एक्सपर्टीज होते हैं जो उनका काम करते हैं. The man power is divided on the basis of product line. अब मैन पावर मतलब लेबर जो है, मैन पावर जो है, काम करने वाले जो लोग हैं वो अकॉर्डिंग टू स्किल्स. जिसको केमिकल की नॉलेज होगी वो केमिकल डिवीजन में चला जाएगा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता वो इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाएगा, और जिसको प्लास्टिक के बारे में पता होगा वो प्लास्टिक डिपार्टमेंट में चला जाएगा. एंड ईच डिवीजन वर्क्स as a profit center and is headed by a divisional manager, और इनका एक डिविजनल मैनेजर भी होगा. सो दीज ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर उन प्रोडक्ट्स के लिए होता है जो डाइवर्सिफाइड होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है जिनकी एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, जिनके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं. लाइक गारमेंट्स भी है, फुटवेयर भी है, हैंड बैग भी है, और इन सब के अलग अलग मैनेजर, HR मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर. सो अलग अलग ज़्यादातर उन कंपनीज़ के लिए होता है जिनके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं. लाइक रिलायंस कंपनी जैसे हो गई, फुटवेयर, कपड़े भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मोबाइल भी है. सो I hope this flow chart clears about divisional structure. Now let's discuss about the various advantages and disadvantages. There are so many growth opportunities in divisional structure as various functions within a division. Divisional head develops specialized skills which prepares him or her for higher positions. Then defines accountability. Each division is headed by a division head who is responsible for the performance of the division. So it becomes very easy to identify the cost and revenue of a division. So बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि कितना कॉस्ट होने वाला है. It also helps to fix responsibility in case of poor performance. और अगर गलत काम हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ईजी हो जाता है, सो दैट इन फ्यूचर करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन. देन इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ पर क्योंकि अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, एक जैसा काम तो नहीं कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, और उससे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. मतलब उनको हम मौका दे रहे हैं दैट दे हैव टू स्पीक, दे हैव टू गिव देयर ओन आइडियाज़, ताकि जब भी डिसीजन लिया जाता है तो उनके आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है. देन इट ऑल्सो डिफाइंस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. न्यू डिविजन्स इसमें आती हैं. द डिवीजन स्ट्रक्चर कैन ऐड न्यू डिविजन्स टू एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब मान लो एक कंपनी थी जो पहले फुटवेयर और गारमेंट्स का काम कर रही थी, अब हैंड बैग्स भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिए हैं. सो अब जो एक्सपेंशन का जो चांस होता है वो डिविजनल स्ट्रक्चर में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू functional structure.
Now there are certain limitations also, disadvantages also, like again there should be conflicts तो होंगे ही, जब एक से ज़्यादा डिवीजन होंगे तो conflicts तो होंगे ही. देन ऑपरेशन कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं और बहुत सारा स्टाफ अपॉइंट करना पड़ता है, इसलिए कॉस्ट तो ज़्यादा होती ही होती है. देन कंप्लीट अथॉरिटी इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, क्योंकि डिविजनल हेड है, उनके अपने अपनी अथॉरिटी होती है, उनके अपने अपने तरीके हैं काम करने के. हर एक डिवीजन का एक हेड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अलग अलग डिवीजन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो उनका अपना तरीका है काम करने का. तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिफाइड डिवीजन्स. इतने सारे डिवीजन जब होते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पीछे छूट जाता है. सो दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. आई होप दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.